जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Okay, जी, let's start with today's lecture. And today's it's my sixth lecture from chapter number 5, that is acellular life. And so before starting the today's topic, I want to go through a quick review from the last lecture. So discuss the structure of a bacteriophage. Very first question is that you need to write the structure of bacteriophage, then define virulent phage, and lytic cycle is a master-slave relationship justify, and you need to write why lytic cycle is called as master-slave relationship in this question. And the next question is which are the changes takes place during infection process, and finally you need to draw the life cycle of lytic cycle, by the way, of bacteriophage. Bacteriophage is basically example of a lysogenic cycle. It has to go on through the lysogenic cycle. E. coli is an example of a lytic cycle. Anyways, so sketch out the lytic cycle, जो diagram हमने discuss की in the last lecture. So you need to draw that diagram. Okay, next topic. Today's topic is life cycle of bacteriophage, and the cycle is lysogenic cycle. Okay, G. So let's start with the today's topic: life cycle of a bacteriophage, and do whatsoever the life cycle, whether it is the lytic or the lysogenic. In both cases, it has to go through certain steps. Very first step is infection, and then is replication. आपको पता है बताइए कि इसके दो steps थे, infection process and replication. Basically, lysogenic में हम पहले step को infection नहीं कहते क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन नहीं किया होता अभी। वो जब चलिए मैं आगे अब बताऊंगी कि क्या होता है, लेकिन ये सारे स्टेप्स वो ज़रूर करता है। मीन्स कि वो एब्जॉर्प्शन करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, जीनोम इंजेक्शन करेगा। हम लिटिक में इसको इन्फेक्शन प्रोसेस का नाम दे रहे थे, तो हमने इसको यहाँ भी इन्फेक्शन ही कह दिया है क्योंकि ये सब स्टेप्स तो ये करेगा ही। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर। Okay, then you have a good idea about the topic adsorption, penetration, and genome. Like in adsorption, virus will go to make a bond with the receptors present on the bacterial cell wall. Then in penetration, he has to insert its core tube. Finally, in the genome injection, it has to enter viral DNA into the bacterial cell. Finally, what is lysogenic life cycle? लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल अब करना किसने है? ऑब्वियसली एक बैक्टीरियोफेज ने करना है, ठीक है। सो दैट बैक्टीरियोफेज इज बेसिकली कॉल्ड एज टेम्परेट फेज। जैसे कि लिटिक फेज जो था उसका नाम था विरुलेंट फेज, ठीक है। वो फेज जो फौरी तौर पर डिजीज कॉज कर देता है, डेथ कॉज कर देता है, हम उसे कहते हैं विरुलेंट फेज। लेकिन टेम्परेट फेज, ये जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल लेके चलेगा, उसका नाम टेम्परेट है क्योंकि वो फौरी तौर पर उसकी डेथ नहीं कराता, एक नॉर्मल सा टेम्परमेंट शो करता है। एंड नाउ ये भी मुझसे पॉसिबल है कि वो जाके लिटिक ही को इंड्यूस कर दे, वो भी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में कैसा क्यों होगा। ओके, मगर बेसिकली ये क्या करेगा, हम लाइसोजेनिक की जब भी बात करेंगे तो हम बात करें एक डोरमेंट फेज की। मीन्स कि वायरस जब भी बैक्टीरिया में एंटर होगा तो वो एक डोरमेंट स्टेट में चला जाएगा, वो चुपचाप जाके वायरल जीनोम जो है बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट बन जाएगा और बिल्कुल खामोशी से अंदर उसके साथ रहेगा, बगैर उसे कोई तकलीफ दिए, कोई भी चेंजेस उसकी सेल में किए बगैर, ठीक है। सो दैट लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, जिसे वहाँ हम कह रहे थे कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन यहाँ हम इसे कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। Okay, the very first step is phage DNA integrates into host chromosome. Now, what is that? This is actually the incorporation of the viral genome into the host genome or bacterial genome or prokaryotic genome. ठीक है, जब भी वायरल जीनोम होस्ट जीनोम का पार्ट बन जाएगा, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोफेज, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रोफेज। then it will replicate along with the replication of the host cell, and then obviously this viral chromosome will passes to the all of the daughter cells of the bacteria. Okay, then lysogenic life cycle में next ये वही terms है, वैसे तो बता चुकी हूँ। what is prophage? Prophage is the integrated state of phage DNA. Definition मैंने दोबारा लिख दी है, the incorporation of the viral genome into the prokaryotic host or prokaryotic genome is called as prophage. Now what is a lysogenic bacteria? यानी कि हम बैक्टीरिया की बात करें, ऐसा बैक्टीरिया दैट हैज
प्रोफेज, जिस ऐसा बैक्टीरिया लाइसोजेनिक कहलाता है जिसके जो भी प्रोफेज स्टेट में से गुजर रहा होगा, मीन जिसके जीनोम में वायरल जीनोम प्रेजेंट होगा, हम उसे कहेंगे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक क्या होती है? जिस जो भी ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर प्रोफेज प्रेजेंट होगा, वो क्या कौन सी कंडीशन में से गुजर रहा होगा? लाइसोजेनी में से गुजर रहा होगा। Now, the term is which is a speciality of the lysogenic cycle is called as induction. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ खास सिचुएशन होती है जिसमें लाइसोजेनिक भी लिटिक की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि वो हो सकता है एंटर होते ही लिटिक करवा दे, हालांकि वो होता लाइसोजेनिक का है। ओके, now first of all we need to understand the term what is induction. Induction is the conversion of lysogenic cycle into lytic cycle, ठीक है? यानी कि अब लाइसो या end of lysogenic cycle is called as induction, means कि now virus is going to induce a new state onto the host, ठीक है? और वो न्यू स्टेट क्या है? वो लिटिक स्टेट है, मीन्स अब वो सेल्स को बर्स्ट कर देगा, सेल्स की लाइसिस करवा देगा। सो लाइसोजेनिक स्टेट कैसे एंड अप हो जाएगी? जैसे ही वायरस को ये महसूस होगा कि यार अब ये जो बैक्टीरियल सेल है इसकी डेथ होने वाली है। अब वो बैक्टीरियल सेल की डेथ कैसे हो सकती है? बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है? मींस फूड अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत लो है। तो ये सारी सिचुएशंस कैसी हैं जिसमें से बैक्टीरियल सेल की डेथ पॉसिबल है, ठीक है? सो दीज आर ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज अनफेवरेबल कंडीशंस। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें वायरस समझ जाता है कि अब बैक्टीरियल सेल्स का बचना मुश्किल है, तो वो फौरी तौर पे लाइसोजेनिक साइकिल को लिटिक में कन्वर्ट कर देता है। एंड द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज डेसिकेशन, देन इज एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सपोजर टू म्यूरोजेनिक केमिकल्स, मीन्स या तो इर्द गिर्द कोई रेडिएशंस प्रेजेंट है जिससे उसको है कि बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी, या इर्द गिर्द कोई केमिकल ऐसा प्रेजेंट है जिससे बैक्टीरियल सेल हिट होने का अंदेशा है, तो वायरस फौरी तौर पे लिटिक करवा देगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेपरेशन ऑफ द वायरल जीनोम फ्रॉम द होस्ट जीनोम। अब आपको मालूम है कि उसने लिटिक शुरू करना है, तो लिटिक के आगे से वही सारे स्टेप हैं, लाइसिस ऑफ इट्स होस्ट आफ्टर इट्स ओन मल्टीप्लिकेशन, ये काम कराना है उसने। अब लाइसिस करानी है लेकिन अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद, और अब ये बन गया मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। होस्ट जीनोम डीएनए इज इमीडिएटली डिसइंटीग्रेटेड। अब वो फर्स्ट सबसे पहले आके क्या करेगा? होस्ट जीनोम की के टुकड़े टुकड़े करवा देगा। वायरस खुद ही ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसके वायरस की जीनोम को कुछ भी नहीं होगा। फिर सब्सिक्वेंट स्टेप्स में असेंबलेज है, मेचोरेशन है, लाइसिस है और रिलीज है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे ये सारे स्टेप्स। फिर वही 20 से 25 मिनट के अंदर 200 फेजेस बन जाएंगे। लेकिन लाइसोजेनिक का वायरस को बहुत फ़ायदा होता है। लिटिक फेज में आप देख रहे हो कि 20 से 25 मिनट्स में ओनली 200 फेज कैन रेडी, राइट, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल। But in case of lysogenic cycle, numerous viruses, millions of viruses can produce, तो इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई हो जाता है, इससे वायरस को फायदा होता है, इसलिए वो नॉर्मली लाइसोजेनिक की तरफ जाने की कोशिश करता है, या पॉसिबिलिटी जिसके अंदर है वो करते हैं। Now look at the figure. First of all, this is lysogenic cycle and lytic cycle both. But I am starting this cycle from this figure, from this step, by the way. This is basically showing you the first step in including adsorption, penetration and insertion. ठीक हो गया? अब insertion के through उसने क्या किया? अपना viral genome इसके अंदर insert कर दिया, ठीक है? Next step में क्या हुआ? ये viral genome इंटेग्रेज एंजाइम इनके अंदर होगा, और इंटेग्रेज एंजाइम क्या करेगा? वायरल जीनोम को होस्ट जीनोम का पार्ट बना देगा। नाउ दिस स्टेट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोफेज स्टेट, ठीक है? द इंजर्शन ऑफ वायरल जीनोम इनटू द बैक्टीरियल जीनोम इज कॉल्ड एज प्रोफेज। दिस इज द प्रोफेज। नाउ अब ये चुपचाप अंदर बैठा हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं कह रहा। Now bacterial cell is going to divide through binary fission, ठीक है? उसने क्या किया? जब binary fission करने का इरादा किया तो उसने अपना जीनोम रेप्लिकेट किया। आप देख रहे हो दो बन गए, राइट, और दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए, और वायरल जीनोम दोनों जीनोम्स दोनों उसके डीएनए का पार्ट है। एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस हम देख सकते हैं कि दो सेल्स बने और दोनों में प्रोफेज प्रेजेंट है, ठीक है? और अब ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यूड रहेगा जब तक कि
कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती, ये लाइसोजेनिक साइकिल यूं ही चलता रहेगा, बैक्टीरिया डिवाइड करता रहेगा और वायरस की प्रोजेनी बढ़ने के चांसेस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो ही इसका मूड ख़राब हुआ, और मूड ख़राब कैसे होगा, ऑन द स्टेट ऑफ द होस्ट की हालत ख़राब हो गई है किसी वजह से भी, डेसिकेशन की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से, किसी भी वजह से अगर वायरस बैक्टीरियल सेल की डेथ होने वाली है, तो फिर उस केस में सबसे पहले इसका देखो डीएनए गायब हो गया, तो होस्ट के डीएनए की इंटीग्रेशन करवा दी उसने, सॉरी डिसइंटीग्रेशन करवा दी, और डिसइंटीग्रेशन के बाद असेंबलिज पे चला गया, मल्टीप्लिकेशन करवाई अपनी, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करवाई, और मल्टीप्लिकेशन के बाद असेंबलिज पे चला गया, असेंबलिज के बाद मेचोरेशन पे आ गया, मेचोरेशन में फाइनल हेड के अंदर जीनोम, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वो चला गया, और फिर टेल अटैच हुई, और ये मच्योर रेडी है बिल्कुल फॉर द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब वो अंदर इतने ज़्यादा भर गए हैं कि बैक्टीरियल सेल से निकलना उनके लिए, उनके वो ज़रूर निकलना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंदर एंजाइम्स भर देते हैं जो कि लाइसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर जाएगा और ये सारे बाहर निकल जाएंगे। ओके जी, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द 2 साइकिल्स, और हमने कंप्लीट कर लिया लाइसोजेनिक साइकिल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, यू कैन राइट मी इन द कमेंट्स। ओके, so this is another cycle for describing the same lytic versus lysogenic, and I like that diagram because इसमें labeling बहुत अच्छी, बहुत complete है। आप लोग इसमें से एक दफ़ा go through ज़रूर करना। इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। सो ये मैंने काफ़ी देखी इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये जो मुझे सबसे सूटेबल लगा वो मैंने इस वीडियो में डाल दिया, ताकि आप लोगों को, आप लोग यहाँ से इसको देख लो। इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ये आ सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि सेपरेटली आ जाए, कोई एक पूछ ले आपसे, लेकिन ये ज़्यादा चांस है कि दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाए, क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। ओके जी, दैट इज़ द एंड ऑफ माई टुडेज लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी